सब्सक्राइब करिए बॉडी बिल्डिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल को और दबाइए नोटिफिकेशन की घंटी को। और इसमें घंटा कोई पैसे नहीं लगने हैं। स्वागत है आपका बॉडी बिल्डिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल में। और आज एक नया वीडियो लेकर मैं सामने आया हूँ। और आज हम लोग एक वीडियो पर रिएक्शन देंगे। कौन सी है वो वीडियो? तरुण गिल के ऊपर। अब देखिए, कुछ तरुण गिल के लवर्स भी होंगे जो शायद ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको एक बार बता दूं कि मेरा उनसे पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं भी लाइक करता हूँ उनकी वीडियो। लेकिन देखिए, अब कोई भी हो, कोई भी XYZ, यदि मुझे लगेगा कि कुछ गलत है तो मैं बोलूँगा उसके खिलाफ। और आप, मैं उम्मीद करता हूँ बॉडी बिल्डर्स लवर ज़्यादा होंगे, पर्टिकुलर किसी बंदे के लवर होने के। और देखिए, जैसा भी है, देखिए मेरा जो मानना है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में तरुण गिल ने बात किया है कि कितनी कॉस्ट आती है एक बॉडी बिल्डिंग के लिए, आपको रिप होने के लिए। रिप होने के लिए मतलब यदि कोई रिप होना चाहे, कट्स लाना चाहे बॉडी में, तो क्या कॉस्ट आती है, जैसा कि उन्होंने बताया है इस वीडियो में। तो चलिए देख लीजिए पहले वो वीडियो। मैं उसके बारे में क्या क्या बात करने वाला हूँ, फिर आप समझेंगे, तब हम बात करेंगे उसके बारे में। तो ये क्लिप देखिए। Now, muscle building tools. What are those tools? Number one, food. You will be spending about rupees 300 to 500 every day. Probably, on your chicken breast, 150 to 200 rupees, you would have about at least half a kg, I presume. Some fish if you're non-vegetarian. Juice and everything. Fruits, dry fruits. I think 500 is very, very conservative. It may even go up till about 1,000 rupees. So I'm going to roughly get about 500 rupees on your food. Next, whey protein. Now, for a person like you and me, a box of protein, 500 box of protein is just good enough, which could range somewhere between rupees 3,500 to 6,000 rupees. But for a bodybuilder or a fitness model who's aspiring for that chiseled, ripped physique, one box won't be enough for the month. You've got to have at least 2 boxes. 2 boxes, I mean 10 lbs, which is equivalent to about 4.8 to 5 kilos, which means 4 to 6 scoops a day. Yeah, you heard me right. 2 boxes of that. That'll cost you somewhere between 6,000 to 7,000 rupees. 3, BCAAs, because obviously when you're trying to get ripped, you would want to add BCAAs because you don't want to compromise on your hard-earned muscles. So you want to retain that muscle, and BCA may be of help to you, but you don't want to risk it. So you will invest in BCAA for your intra-workout, right? Now let's talk about the juice, the dark side of fitness, the steroid. Holistically speaking, usually a bodybuilder, an Indian bodybuilder, or a fitness model, I'm not going to name people here, spend at least rupees 10,000 to 25,000 rupees a month on 1 or 2 cycles. Now, this cycle could range between 6 weeks to 12 weeks for a bodybuilder to prepare for a stage show. He usually takes about a good 3 to 6 months. So this is how he spends. So this cycle could be around his, he may start with bulking, and some Debol or some, anadrolic, which are bulking oral steroids, and then he'll go down to about, cutting steroid like a Winstrol, Sanazole, and a little bit of equipoises to give that definition out. That's the juice part of it. So I'm ranging between 10,000 25,000 depending on how the body is going to respond. And trust me, these bodybuilders really jack up, and their doses really go up the sooner they're reaching the competition. So if they start with about, say, a cc a week, it may go up to about 3 cc a week too. So it's the dosage also, and every dosage comes with the money. Now there's another thing that these guys have started adding into their arsenal, which is the AGH. Now, AGH is human glutamate. I have a different video planned for this, so I'm not going to tell you what they are. They're just peptides. They're to be injected on your stomach. And that, my friend, is a very, very expensive, I would call it a drug. So typically 100 IU kit of HGH will cost you somewhere between 20,000 to 50,000 rupees depending on the brand. Like say a Ranbaxy head-on brand will cost you about 15 to 20,000 100 IUs, versus a Lilly or a Pfizer which will cost you somewhere between 40 to 50,000 a month for 100 IUs, and you have to take about 4 IUs a day.
once upon waking up, once before going to sleep. That's 50,000 right here. So monthly cost to prepare for a bodybuilding show is rupees 80,000 to 1 lakh. Can you imagine 1 lakh a month on yourself? That's why I say people who have a great physique either are super rich, it's a royal sport, or if that's why you'll see a lot of bodybuilders and fitness models, Indian models I'm talking about, they don't have actually money to spend, otherwise they just spend all their money on supplements and steroids and stuff like that. So 6-month prep, you're looking at somewhere between 6 lakhs. 6 lakh is what you typically would be spending to get that look. अब देखिए, जैसा कि ये कह रहे हैं इस क्लिप में, मेरे को नहीं लगता कि आपको कटिंग लाने के लिए टेस्टोस्टेरोन भी चाहिए, टेस्ट भी चाहिए और स्टेरॉइड चाहिए, इतनी डाइट चाहिए, ये सप्लीमेंट चाहिए और ग्लूटामीन चाहिए और साथ में एचजीएच भी चाहिए। देखिए, एचजीएच क्यों चाहिए? यदि कि आपको बढ़ा के बतानी ही है कॉस्ट तो कोई बात नहीं, जानते हैं हम लोग एचजीएच सबसे महंगे स्टेरॉइड में आता है। और यदि आपको कटिंग लानी है तो इसके लिए आपको इतनी सब चीज़ नहीं चाहिए। स्टेरॉइड क्यों चाहिए? पहली बात, क्यों चाहिए स्टेरॉइड? आप कटिंग ऐसे भी ला सकते हैं, ठीक है, ऐसे ला सकते हैं आप कटिंग, स्टेरॉइड नहीं चाहिए इसके लिए आपको। अब कटिंग लाने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल 2%, 3%, 5% बॉडी फैट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप चाहे तो मेरी टाइगर श्रॉफ वाली वीडियो देख सकते हैं, तो मैंने उसमें जो बात करी है, तो एक 6 पैक एब्स या 8 पैक एब्स लाने वाली कटिंग आ सकती है। इसके लिए स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं है, और यदि कोई ले भी रहा है तो ये तो उसकी अपनी मर्जी की बात है, मैं कुछ नहीं कर सकता इस पर। लेकिन एचजीएच की बिल्कुल ज़रूरत है। हाँ, कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं जो आपकी बॉडी के मसल्स को उस टाइम प्रिजर्व करते हैं जब आप कटिंग की डाइट पर होते हैं। जब आप डाइट पर होते हैं तो हाई प्रोटीन, तो आप जानते हैं प्रोटीन थोड़ी कॉस्टली होती है, और इसके अलावा कुछ स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड मेरे को लगता है इंडिया में स्टेरॉइड से ज़्यादा जो कॉस्टली हो तो सप्लीमेंट ही। देख लीजिए आप कोई सप्लीमेंट नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन वगैरह, और देखिए टेस्टोस्टेरोन और इक्विपोज, ईक्यू जिसको बोलते हैं, बर्डनोन, ये दोनों बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यदि आपको कटिंग करनी है तो। और विंसिटॉल वगैरह तो यूज़ करने कुछ खास ज़रूरत नहीं है। इक्विपोज यदि आप थोड़ी हंगर अपनी कंट्रोल कर सके, ठीक है, तो इक्विपोज और टेस्टोस्टेरोन मिलकर ही कटिंग जो लाएंगे वो स्टेबल, उसके साथ आपका बहुत अच्छा मसल प्रिजर्व रहेगी। मसल्स प्रिजर्व रहनी बहुत ज़रूरी है कटिंग में। आप कटिंग में, अब देखिए फैट तो चला जाता है तो मसल्स तो होनी चाहिए ना, वरना शो क्या करेंगे आप? शो ऑफ करने के लिए तो मसल्स ही बची। तो पहले आप मसल्स गेन कर लीजिए, पहले मसल्स गेन करिए थोड़ा। उस टाइम कटिंग के बारे में मत सोचिए। यदि आप अभी नए हैं और अभी ज़्यादा मसल्स आपके पास नहीं गेन है तो कटिंग आप क्यों कर रहे हैं? भूल जाइए कटिंग करनी है आपको, ठीक है। कम से कम 6 मंथ आप मसल्स गेन करने के बारे में सोचिए, हर एक मसल्स गेन करने के बारे में, चेस्ट की, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, एब्स, मसल्स गेन करने के बारे में, बिल्कुल बस मसल गेन करने के बारे में सोचिए। जब मसल्स गेन हो जाएंगी उसके बाद आप कटिंग के बारे में सोच सकते हैं। आप स्टार्टिंग में गए जिम, आपने कभी जिम नहीं किया और आप स्टार्टिंग में आते ही आते नहीं मेरे को कटिंग निकालनी, तो गैस कोई फायदा नहीं कटिंग निकालने से, ठीक है। सपोज कीजिए स्टार्टिंग में मोस्टली होगी, अब आपकी 11-12 इंच की आर्म है, ठीक है, अब आप, और आपका बॉडी फैट परसेंट 15-16% है, आपको 5% लूज करना है, 10% आप आ गए, आपकी 10 इंच बाइसेप्स रह गई, क्या आप रह जाएगा उसमें? ना उसमें बाइसेप्स दिखेगी, ना ट्राइसेप्स दिखेगी, ना चेस्ट दिखेगी, कटिंग क्या होगी फिर? आप बताइए। आप तो एक पतले दुबले इंसान हो जाएंगे केवल। तो अब मैं तरुण गिल के ऊपर मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, लेकिन मैं आपसे तो बोल ही सकता हूँ ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, तो इस बात को देखिए, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि स्टेरॉइड और खासकर ये एचजीएच वगैरह ये बहुत कॉस्टली है, ये नॉर्मल लोग यूज करने लायक की कोई चीज है ही नहीं। एचजीएच आपकी बॉडी बनाती है, और यदि आप चाहें एचजीएच और ज्यादा आप एचजीएच चाहें बनाना, तो पहली बात तो देखिए स्टेरॉइड जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह होते हैं ये खुद ही एचजीएच का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं बॉडी में, ठीक है। मैं इसके बारे में सारे स्टेरॉइड के बारे में एक एक बात करूंगा। अभी तो मैंने सप्लीमेंट के बारे में बात नहीं की, लेकिन ये वीडियो यदि मेरे पास आई है, किसी ने कहा है कि इस वीडियो का रिव्यू कीजिए, बताइए क्या इतने ही पैसे लगते हैं बॉडी बिल्डिंग में? तो देखिए पैसे लगने को तो इससे ये तो कुछ नहीं है, आप जितने चाहो लगा सकते हो पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे लगा सकते हो, वो डिपेंड करता है। लेकिन यदि आपको सिर्फ कट लाना है तो इतने पैसे, 1-2 लाख पैसे आप कहाँ से 1-2 लाख रुपए एक्सपेंड करेंगे? मैं जानता हूँ सब लोग नहीं कर सकते, और यही एक काम तो है नहीं
देखिए यही एक काम तो है नहीं ना, और भी तो काम है, और भी तो खर्चे होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें आप बस मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। देखिए आपकी सारी समस्याओं का मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको, और मैं आपकी बॉडी बनवा के रहूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक, मैंने पहले भी प्रॉमिस किया और ये प्रॉमिस मेरा है, और ये प्रॉमिस पूरा होगा। तो बताइए कमेंट में आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपका इस बारे में आपकी क्या राय है, और लाइक कीजिए इस वीडियो को। चलिए इस बार अभी मेरा चैनल नया है, इस पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो इसलिए कम ही एम रखें। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए इसको, जल्दी से चैनल ग्रो करिए, और खुद को भी ग्रो करिए। आप ग्रो करेंगे और ये चैनल ग्रो करेगा साथ साथ में, बहुत मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।